استفسار کیا حضور اس تفاوت کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ جس طرح والدین کی خدمت گزاری وہ کرتی ہے یہ نہیں کرتا. توجہ فرمائیے آپ نے. جس طرح والدین کی خدمت گزاری وہ کرتی ہے یہ نہیں کرتا. صلوات پڑھ لیجیے محمد والے. والدین کا خدمت گزار جلیس انبیاء ہوتا ہے. جس کتاب سے عرض کر رہا ہوں نام ہے عیون اخبار الرضا. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں پروردگار سے پالنے والے جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ کون ہوگا جو میرے ساتھ جنت میں رہے گا؟ خدا کہتا ہے موسیٰ فلاں شہر کے رہے گا. اس شہر کے فلاں محلے میں جانا. اس محلے میں ایک دکان ہے, ایک قصاب گوشت فروخت کرتا ہے, وہ تیرا جلیس ہوگا, یعنی تیرا ساتھی ہوگا جنت کا. حضرت موسیٰ کو تعجب ہوا. دوسرے شہر میں پہنچے, اس محلے میں گئے, اس دکان کے باہر کھڑے ہو کے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اس میں ایسی چیز کیا ہے کہ جسے خدا نے اتنی عظمت دی ہے کہ مجھ جیسا ہو گیا. وہ دکان ہے مجھ جیسا یعنی میرے ہم سان ہو گیا, میرے ہم مرتبہ جس درجہ جنت میں ہوں گا اس میں یہ ہوگا. کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی خاص بات تو نظر نہیں آ رہی. بالکل عام سے اقتصاد ہے, گاہک آ رہے ہیں توڑ کے دے رہے ہیں, جس طرح دوسرے دے رہے ہیں اسی طرح دے رہے ہیں. حضرت موسیٰ کو تشویش ہوئی, اب معاملے کی تہ تک جانا چاہتے ہیں. فیصلہ کیا کہ اس کے ساتھ گھر جاؤں اور آج اس کا مہمان ہوں. وہ حضرت موسیٰ کو ماننے والا ہے لیکن دوسرے شہر میں رہتا ہے, پہچانتا نہیں ہے. جب اس نے سارا اپنا کام ختم کیا, کچھ گوشت اپنے حصے کا اٹھایا, گھر کی طرف روانہ ہوا, حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے. اپنے گھر پہنچ کے جب دہلیز کے اندر قدم رکھنے لگا تو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں بندہ خدا کیا مہمان نہیں چاہتے تم کسی کو؟ مہمان تو خدا کی رحمت ہے. کہا کہ میں آج کی رات تیرا مہمان ہوں, جس میں تشریف لائیے. انہیں لے گیا, اندر بٹھایا. آپ کے پاس مہمان آئے تو پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ مہمان کو بٹھا کے تواضع کی جاتی ہے, پانی کا پوچھا جاتا ہے. اس نے بٹھایا مہمان کو لیکن کچھ نہیں پوچھا. جلدی سے دوسرے کمرے میں گیا, ایک لحاف میں کوئی چیز اٹھا کے لایا اور سامنے آ کے رکھا تو دیکھا کہ بوڑھی ہو اور اتنی نحیف ہے, اتنی نزار ہے کہ خود سے حرکت نہیں کرتی. اب اس نے سب سے پہلے اسے پانی پلایا. یعنی دنیا و مافیا کو یہ نوجوان بول چکا ہے, اسے نہیں پتا کہ میرے پاس کوئی مہمان بیٹھے. بڑے پیار سے, بڑی محبت سے اس عورت کو اس نے صاف کیا, اس کی رالیں جو اس کا منہ دلوایا. اس کے بعد جو ہے وہ غذا تیار کی. سب سے پہلے جو ہے اس عورت کے منہ میں غذا رکھی, اور جب اس کے کاموں سے فارغ ہو چکا تو اسے اٹھا کے دوسرے کمرے میں رکھ کے آیا اسی بستر کو. اب حضرت موسیٰ کی طرف متوجہ ہوا اور ان کی خاطر غذا رکھی. حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں مجھے یہ بتاؤ یہ کیا ماجرا تھا؟ کہا کہ اے بندے خدا یہ میری والدہ ہے, مجھ میں اتنی ثقت نہیں کہ میں ان کی خدمت گزاری کے لیے کوئی نوکر یا کوئی نوکرانی رکھ سکوں, اور اتنی بھی میری اوقات نہیں ابھی کہ میں شادی کر سکوں اور میری بیوی ان کے کام کو جو ہے وہ انجام دے سکے. میں خود محنت مزدوری کر کے آتا ہوں, جو وقت بیٹھتا ہے پہلا کام میں یہ کرتا ہوں کہ والدہ کی صفائی کرتا ہوں, انہیں ان کے لیے کھانا بناتا ہوں, اور کھانا خود جو ہے بعض اوقات اپنے منہ میں رکھ کے چبا کے ان کے منہ میں رکھتا ہوں تاکہ انہیں ہضم کرنے میں کوئی دقت نہ ہو. حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ جب یہ تم نے سارا کیا تھا تو خاتون کچھ ہلکا ہلکا بڑبڑا رہی تھی, میں سن نہیں پایا, میں پاسے پہ بیٹھا تھا. تو وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ میری ماں جب بھی میں یہ ساری اس کی خدمت کرتا ہوں تو مجھے ایک دعا دیتی ہے کہ خدا تجھے بخش دے, خدا تیری مغفرت کرے, اور آخرت میں خدا تجھے موسیٰ کا جلیس بنائے. حضرت موسیٰ یہ سن کے رو کے کہتے ہیں کہ اس نے تیری دعا قبول کر لی, تو ہے میرا جلیس آخر میں, اور میں ہوں وہ موسیٰ جسے تیرے پاس بھیجا. صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد آل محمد. والدین کی عظمت, والدین کی کرامت. واقعہ جب ہم معصومین کے فرامین پڑھتے ہیں تو بندے میں نا ایک عجیب سی کبھی سی تاریخ ہو جاتی ہے. ایک ایسی عجیب سی چیز میں نے پڑھی, مجھے خود اس کا نہیں تھا پتا. اس میں یہ ہے کہ اگر معاذ اللہ خدا نہ خواستہ والدین گناہگار بھی ہوں تو یہ ان کا اور خدا کا معاملہ. جو
वालिदैन को अता की गई है करामत, इसका पास करो। कैसे? यहाँ तक तफसील मिलती है कि जब वालिदैन ना रहें इस दुनिया में तो तुम जाओ उनकी कब्रों पे उनकी इस्तग़फ़ार, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करो और अपने दुआएं, अपनी हाजतें इनके वसीले से तलब करो, वालिदैन के वसीले से, अगरचा वो गुनाहगार है। और यहाँ तक फिर बयान किया गया कि अगर कब्रों का नहीं पता तो कहा कि शबी बनाओ कब्र की, शबी बनाओ, वालिदैन की कब्र की शबी बनाओ, वहाँ पे इस्तग़फ़ार पढ़ो और खुदा को वास्ता दो कि खुदा वास्ता इन वालिदैन का मेरी ये हाजत पूरी कर। खुदा कहता है ये ना देखना कि वो गुनाहगार थे, उस अज़मत के तोफ़ैल मैं तेरी दुआ पूरी करूँगा जो मैंने उन्हें दी है, जो मैंने उन्हें दी है। बंदा आता है जनाब हतमी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, नादिम है, गुनाहगार है और तौबा करना चाहता है। कहता है मौला दुनिया का कोई ऐसा बुरा काम है ही नहीं जो मैंने सरअंजाम ना किया, क्या मेरी भी तौबा कबूल हो सकती है? हजूर फरमाते हैं वालिदैन में से कोई जिंदा है? हाँ, मेरे वालिद जिंदा है, आ जाओ उसकी। अब जब पलट के जाने लगा तो हजूर वाकई साहब से मुखातिब होकर कहते हैं कि अगर वालिदा जिंदा होती तो तौबा इसकी और जल्दी कबूल होती। तो एक और अगर आप मुझे तारीखी रवायत पढ़ने की इजाज़त दें और उसके बाद जिक्र मसाइल सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हमारे मकतब के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं सैयद इब्न ताऊस, नाम सुना होगा आपने। किताब का नाम है महजुद दअवात। ये आज आपके पास मफातिहुल जनान है ना, जो ये जिन मुस्तनद किताबों से डिराइव्ड है, जिन मुस्तनद किताबों से लेके मुहद्दिस कुम्मी ने ये किताब लिखी है, उन किताबों में से मुस्तनद तरीन किताब है सैयद इब्न ताऊस की किताब महजुद दअवात। इस किताब से एक हक़ाइक़ आपके सामने और रवायत बयान करने की इजाज़त चाहूँगा। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ काबे के तवाफ में मशगूल है। थोड़ी सी तारीकी फैल चुकी है कि एक गिरिया करने वाले की दिलखराश आवाज़ अमीरुल मोमिनीन की समात तक पहुँचती है कि वो बड़ी दिलखराश, बड़ी दर्दनाक, बड़ी कर्मनाक आवाज़ में खुदा से इस्तग़फ़ार तलब कर रहा है जो उसे बाकी तमाम लोगों से मुमताज़ है। अमीरुल मोमिनीन ने इमाम हसन मुज्तबा की तरफ देखा, सैयदुल शुहदा की तरफ देखा, कहा हुसैन जाओ इस गिरिया करने वाले को लेके मेरे पास आओ। इमाम हुसैन अस्सलाम गए, उसे उस इज़्तिहाम में, उस भीड़ में तलाश किया, उसे हाथ से पकड़ा और मौला के पास लेके आए। अब कुछ शायद अंधेरा था, ये मौला को पहचानता नहीं है वहाँ पे, तो फरमाते हैं अमीरुल मोमिनीन कि क्या किस्सा है तेरा, तू क्यों इतनी दर्दनाक आवाज़ में सना कर रहा है, तू क्यों इतना गिरिया उतारी कर रहा है, तेरे नाला और फरियाद की वजह, इल्लत और सबब क्या? तो ये कहते हैं आप क्या करेंगे इसमें? जब तारुफ हुआ कि ये मौला कायनात हैं तो फिर कहा कि मौला मैं कायनात का बदबख्त तरीन इंसान। हाँ बताओ मुझे क्या हुआ तुम्हारा? कि मैं सिर्फ मेरा बाप जिंदा है, मैं फलां करिए का एक अराबी हूँ, यानी जो अराबी कहते हैं जो बदवी अराबी होते हैं, जो रेगिस्तान में रहते हैं, जो शहर से बाहर रहते हैं। मेरा वालिद मुझसे इंतहाई ज़्यादा मोहब्बत करता था। उसने अपने तौर पे जितनी उसकी इस्तिताअत थी, उसने दुनिया की हर नेमत जो उसे मुयस्सर हो सकती थी उसने मेरे सामने रखी, लेकिन मैं लावाली था, मैं वालिद की इज्जत भी नहीं था करता, उसकी दी हुई नेमात को भी कोई अहमियत नहीं था देता, और बिल्कुल जो है कोई अच्छा काम मुझसे सरदर्द नहीं था। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे वालिद ने कुछ पसंदाज करके कुछ रकम एक संदूक में छुपा के रखी हुई है पूरे वक्त के लिए। मुझे पता चल गया। अब मैंने चाहा कि वो रकम लूँ जाके, मेरे वालिद ने जब मेरा इरादा भांपा तो हायल हुआ। मेरी आंखों पे निसियान और इस्यान का पर्दा आ चुका था। मैंने वालिद को नहीं देखा, ऐसा धक्का दिया कि मेरा वालिद नीचे गिरा,
जख्मी हुआ, मैंने वो रकम निकाली। जब रकम निकाल के जाने लगा तो मेरे वालिद ने कहा कि बहुत कुछ किया तेरे लिए, लेकिन अब वादा करता हूँ कि काबा के गिलाफ को पकड़ के तेरे लिए बददुआ करूँगा। ये कहते मैंने इसकी कोई परवाह नहीं की, मैं चला गया, मैंने वो रकम ली, उसे ऐश और नोश में उड़ा दिया, खर्च कर दिया। मेरे वालिद ने जैसे ही वो कुछ थोड़ा से अफाका हुआ, उठा, ऊँट पे बैठा, मंजिलों के मंजिलें तय करते हुए मक्का मुकरमा में आया। और जो लोग यहाँ पे थे उन्होंने मुझे बताया कि मेरे वालिद ने गिलाफ काबा को पकड़ के मेरे लिए बद्दुआ की। बद्दुआ के अल्फाज खत्म नहीं हुए कि मेरे जिस्म का एक हिस्सा छल हो गया। अब ये शख्स कहता है कि मैं अपने किए पे नादिम हुआ, शर्मिंदा हुआ। वालिद जब वापस आए तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे माफ़ कर दें। वालिद के दिल में भी सख्ती आ चुकी थी, उन्होंने इनकार कर दिया माफ़ करने। मैं गिरिया उजारी करता रहा। कुछ अरसे के बाद जब मेरे वालिद का दिल नर्म हुआ तो उन्होंने कहा कि तेरी हालत मुझसे नहीं देखी जाती, चल मैं तुझे लेके चलता हूँ और उसी गिलाफ काबा को पकड़ के तेरे लिए दुआ करूँगा। जिसने बद्दुआ सुनी है वो दुआ भी सुनेगा। अब ये कहता है कि मैं वालिद को साथ लेके चला। रास्ते में एक जगह, एक मंजिल ऐसी थी, वहाँ पे हमने क़याम किया। अभी मेरे वालिद ऊँट से उतरे नहीं, रात का अंधेरा है। करीब के किसी दरख्त पे कोई परिंदा बैठा था। वो परिंदा उड़ा वहाँ से, उसके उड़ने से जो उसकी आवाज़ पैदा हुई, ऊँट बिदक गया। ऊँट बिदक के भागा। उसके भागने से वालिद ज़मीन पे गिरे, नीचे पत्थर था, सर पत्थर पे लगा। वालिद का इंतकाल वहाँ पे ही हो गया। मैंने वालिद को दफन किया। उसके बाद मैं काबा की तरफ आया और मैं गिरिया उजारी कर रहा हूँ। मुझे पता है मेरे वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब कौन है जो मुझे तौबा का दरवाजा खुलवाने में मेरी मदद करेगा? कौन है जो मेरी यहाँ पे मदद करेगा? बोला मुस्कुरा के कहते हैं मैं अली हूँ, मैं तेरी मदद करूँगा। बोला आप कैसे मेरी मदद करेंगे? बोला फरमाते हैं जब 10 ज़िलहज का दिन होगा ना, उस दिन ये एक दुआ मुझसे ले लो, मैं तुझे देता हूँ। ये गिलाफ काबा को पकड़ के तूने दुआ ये करनी है, और जब इस दुआ के अल्फाज खत्म होंगे तो तेरी बीमारी दुरुस्त हो जाएगी, तेरी तौबा कबूल हो जाएगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस नौजवान से ज्यादा मुझे शौक हुआ कि मैं ये दुआ सुन के है क्या। वो नौजवान दुआ लेके चला गया। उस दिन उसने वो उस दुआ की करात की, खुदा ने उसे तौबा उसकी कबूल की। जिस्म उसका जो शल हो चुका था दुरुस्त हुआ। आया अमीरुल मोमिनीन का शुक्रिया अदा कर रहा है और कह रहा है कि मौला इस दुआ में क्या खास चीज़ थी? तो मौला फरमाते हैं इसमें आज़म था, इसमें आज़म था। वो कहता है मौला जैसी मैंने दुआ पढ़ी मुझे गनूदगी महसूस हुई, मुझे ख्वाब की कैफियत महसूस हुई। मैं ख्वाब में देखता हूँ कि सरवर कायनात तशरीफ ला चुके हैं। मेरे उस शल हुए जिस्म में हाथ फेर के कहते हैं उठ, खुदा ने तुझे शफा दे दी है। तो अब वो दुआ कौन सी है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खास ताकीद की है। वो दुआ दुआए मशलूल है जो मफातिहुल जनान में मौजूद है। मफातिहुल जनान के आगाज में जो दुआएं हैं उनमें से एक दुआ है दुआए मशलूल, शल शुदा, यानी शल अरबी में कहते हैं जो पैरालाइज हो चुका हो, जो मफलूज हो चुका हो, जिसे फालिज हो चुका हो। तो फालिज का भी अगर इलाज है तो वो आइमा मासूमीन की तालीम करता अदइया दुआओं में से, और ये ऐसी दुआ जिसके बारे में मासूम कह रहे हैं कि इसमें आज़म है। दुआए मशलूल मेरा ख्याल है दोस्तों को ये बयान करने का मकसद ये था कि ये दुआ और इसका मकाम याद रहे और किस मौके पे ये पढ़नी चाहिए, दूसरे मोमिनीन तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोई ऐसा मर्ज लाहक हो कि उसका कोई हिस्सा शल हो चुका हो, तो वो इसमें आज़म जो अमीरुल मोमिनीन ने और यकीनन आप तक पहुंचा है ये सरवर कायनात के जरिए से, जिसमें इसमें आज़म पाया जाता है, वो दुआए मशलूल आज मफातिहुल जनान में मौजूद। ये है वो बेशबहा अतियात, ये है वो बेशबहा खजाने जो मासूमीन ने हमें अता किए हैं। अब इनकी मौजूदगी में ना बीमारी हमारा कुछ बिगाड़ सकती है, ना कोई गम अलम और कोई किसी किस्म का दुख हमें मजबूर कर सकता है। कितना बड़ा दुख है बाप के फुकदान का,
वही जानता है जो इस मरहले से गुजर चुका हो। लेकिन जिसका बाप इस दुनिया से जा चुका है, वो अगर एक दफा अपने आप को करबला में ले जाए और गरीब करबला के बारे में सोचे कि कितना बड़ा गरीब था हुसैन और क्या उस वक्त हालत थी इमाम सैयद साजिदीन की। रवायत बताती है, मकातिल ये बताते हैं कि 11 मुहर्रम को जब तमाम अशकिया ने अपने लाशों को दफन करने के बाद अहले बैत अतहार को जिस तरह से भी हुआ ऊँटों पे सवार किया और आमदन उस तरफ से लेके चले जिसे गंजे शहीदा कहते हैं। अब वहाँ पे देखिए हालत देखिए और जनाबे ज़ैनब कुबरा का हौसला देखिए। इसीलिए फारसी में कहा जाता है अमान अज दिल ज़ैनब, अमान अज दिल ज़ैनब। मासूम इमाम मौजूद है। किसका जमाना है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, इमाम सैयदुस साजिदीन का। मासूम का हौसला कुछ और हुआ करता है। मासूम को जब गुजारा जा रहा है, ऊँट पे बैठे हैं और ये हालत है कि तारीख बताती है, मौलवीन ने लिखा है, लग रहा है कि सैयद सज्जाद के जिस्म से अभी जान निकल जाएगी, अभी रूह परवाज कर जाएगी। जनाब ज़ैनब कुबरा ने जब ये हालत देखी तो कहा बेटा क्या कर रहे हो, संभालो अपने आप को। सैयदुस साजिदीन कहते हैं अम्मा कैसे संभालूं, आप देख नहीं रही अशकिया को तो अशकिया ने दफन कर दिया। मेरे बाबा जिन पे जन्नत नाज करती है, जिन पे मलाइका नाज करते हैं, उनका लाशा बेगौरो तपती हुई रेत पे पड़ा है। जनाब ज़ैनब कुबरा कहती हैं बेटा सज्जाद, अगर तू अपने आप को नहीं संभालेगा तो हमें कौन संभालेगा, इन बच्चों को कौन संभालेगा। काफिला आगे बढ़ा, मंजिलों पे मंजिलें तय करता हुआ कूफा पहुंचा। कूफा के मसाइल सारे मकातिल में दर्ज हैं। कूफा से शाम की तरफ काफिला चला। जब शाम में काफिला पहुंचा, दरबार यजीद में काफिले की हालत क्या है। अब अपने तमाम तसव्वुरात को अपने ज़हन में ले आए। दरबार यजीद है खास तौर पे सजाया गया है, इसलिए कि बागी आए हैं, खास तौर पे सजाया गया है। सिर्फ मैं वक्त को मलबूज रखते हुए कि जो उसकी कैफियत है, एक तरफ वज़रा बैठी है, दूसरे तरफ फुकरा बैठे हैं, आयान हुकूमत के अहम तरीन लोग बैठे हुए हैं, बीच में कुछ ऐसे कैदी हैं जिनकी कैफियत ये है कि उनके गले रस्सी से बंधे हुए हैं। एक रस्सी है, 18 गले हैं। उन सब से आगे एक छोटी सी बच्ची है, उसने अपने पांव उठा रखे हैं, पंजों के बल खड़ी है। तारीख के बता दी, पंजों के बल खड़ी है। बाकी बीवियां झुकी हुई हैं। अगर बीवियां अपनी कमर सीधी करती हैं तो बच्ची के पांव हवा में मुअल्लिक हो जाते हैं। अब जब यजीद ने देखा इस बच्ची को तो कहा कौन है ये बच्ची। शिवर फख्र से आगे बढ़ के कहता है यजीद ये वही बच्ची है जिससे हुसैन को बहुत ज्यादा प्यार था, जिससे हुसैन को बहुत मोहब्बत थी, ये वो बच्ची है। और मैंने करबला से लेके कूफा तक, कूफा से लेके शाम तक इसे मोहब्बत हुसैन का सिला दिया है। यजीद ने कहा फौरन खोलो इस बच्ची को। सबने ये समझा कि जितना भी शकील कल्ब है शायद इसके दिल में रहम आ गया हो। यहाँ पे चूंकि मरहूम सैयद अजहर हसन की बेटियां भी मौजूद हैं, बेटे भी मौजूद हैं, मैं इन सब से यही कहना चाहता हूँ कि अपने गम को मिला दो उस बेटे के गम में और उस बेटी के गम में के जिसके सामने बाप मौजूद था। अब जब सामने आई है सकीना तो यजीद कहता है सकीना तुम्हें अपने बाप से बहुत मोहब्बत थी। सकीना ने बोलना चाहा, बोल नहीं सकी, इस बात में सर हिलाया, ऊँट खोलने की कोशिश की लेकिन प्यास की वजह से ऊँटों से ऊँट जम हो गए। अच्छा हुसैन को भी तुमसे मोहब्बत थी। बीबी ने दोबारा इस बात में सर हिलाया, कितनी मोहब्बत थी तुम्हें, तुम्हारे बाबा खाने को क्या देते थे। बीबी ने मुश्किल से कहा रतब। रतब एक खजूर है, एक खजूर की किस्म है अरब की, वो मौला अपनी इस लाडली बेटी को दिया करते थे। अच्छा अगर इतना ही प्यार था ना तुम्हें अपने बाबा से और बाबा को तुमसे, तो मैं क्यों ना तुझे आज यहाँ पे रतब खिलाऊं। अब ये कह के जो पास तश्त पड़ा था उससे कपड़ा हटाया, रतब तो नहीं था। बाबा का सर देख के सकीना ने बेताब होके कहा बाबा बाबा मेरे बाबा मैं आपके पास आना चाहती हूँ। शिवर ने तालियाना निकाला, ऐसा जुल्म किया कि बीबी वहां पे खड़ी होगी। यजीद कहता है सकीना अगर बाबा को तुझसे मोहब्बत थी तो मैं इस मोहब्बत का
इम्तिहान लेना चाहता हूँ। अपनी जगह पे खड़ी रहे और वहां ठहर के पुकार अपने बाबा को। अगर हुसैन को भी तुझसे मोहब्बत थी तो हुसैन खुद तेरे पास जाए। बच्ची ने नन्हे नन्हे हाथ बुलंद किए, हाथ बुलंद करके कहती है, बाबा बाबा दुनिया मेरा इम्तिहान लेना चाहती है। बाबा दुनिया आपकी मुझसे जो मोहब्बत है इसका इम्तिहान लेना चाहती है। बाबा आ जाइए मेरे पास। तारीख कहती है सारे हुसैन बुलंद हुआ, परवाज़ करता हुआ सकीना के हाथों में आया और सकीना ने बाबा के सर को अपने हाथों में लिया। इस तरीके से हाथ बाबा की जुल्फों में फेर रही है जिस तरह माँ अपने बच्चे की जुल्फों में हाथ फेरा करती है। बाबा बाबा मुझे किसने यतीम कर दिया, किस जालिम ने ये गला काट दिया, किस जालिम ने ये जुल्फें परेशान कर दी। बाबा आप तो चले गए, बाबा आपके जाने के बाद तमाचे भी पड़े, दुर भी छीन लिए गए। अल्लाह